کہ جب میں اسباب میں اپنا وقت لگاؤں گا ہاں تو ہمارا ایمان کمزور ہوگا. وہ بیٹا ہوگا کیونکہ اللہ کا ایک آئے گا نا. اب آپ یہ بتاؤ کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب سب اسباب میں جانے سے کمزور ہو جائے گا ہاں تو جس دن ہمارے سامنے کوئی ایسے حالات آ گئے کہ ہمارے سامنے ہمارے کمزور ہونے کا مطلب نہیں ہوتا ہمارا یقین کمزور ہی، کیونکہ ہمیں ایمان سیکھا ہی نہیں سرے سے. پہلے سے ہم لوگوں نے ایمان کو نہیں سیکھا. کہاں سیکھا ہے ایمان کو؟ ایمان ہمارا نے، ایمان ہے کمزور. ہاں ایمان ہے کمزور چونکہ ہم صحابہ نے کا ایمان سیکھا سیکھے نہیں. تھے نا، ہم ایمان نہیں سیکھے. نہیں تو ہم سیکھے نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہم سیکھنے کی نیت تو کر چکے نا. ہاں نیت کر چکے ہیں، لیکن ویسا اللہ تعالیٰ وہ ایمان دیں گے جیسے صحابہ کو جیسا وہ سبق ہمارے دیے ہیں ویسا ہم لوگ کو نہیں سیکھیں گے. اس لیے تو کہ ہمارے کو کیا ہے دنیا میں جانے سے کیا ہوتا تو اللہ کا غیر کا یقین زیادہ ہوتا، کیونکہ زیادہ وقت ہمارا اللہ گھر پہ لگ رہا ہے. دیکھیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں. ہاں آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں اچھا، بچے بھی ہوں گے؟ ہاں بچے بھی ہیں، بچے وہ ہے. والدین ہیں؟ ہاں آپ کے اوپر ان کے حقوق ہیں. ہاں آپ کے ذمہ ان کے حق کو ادا کرنا ہے. وہ آپ ہاں مزدوری کر کے ادا کریے، ہاں دکان کر کے ادا کریے، ہاں. کیسے بھی ادا کریے. پھر اس کا مطلب کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں جی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے مزدوری کرا تو میرے وہاں سے پیسے آتے، وہ پیسوں سے میرے بیوی بچوں کا گزرن ہوتا، ان کا ضرورت پورے ہوتی. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے اللہ نے ان کے حق رکھے ہیں آپ کے اوپر. ہاں حق کے لیے تو ایمان بدل گیا نا. نہیں، ایمان کیوں بدل جائے گا؟ آپ تو حقوق کو ادا کرنے جا رہے ہیں. آپ کون سا کیا ہو گیا میرے لیے تو اس میں نہیں ہوتا، میرے بیوی بچوں کے لیے میں جاؤں گا کماؤں گا. اللہ غیر ہی ہے، وہ اللہ کا گھر جائے اللہ کا گھر جائے اختیار کر کے اس میں جو بھی آئے گا معاوضہ وہ لے کر میں ماں بچوں کو کھلاؤں گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ضرورت سے اس سے کیا ہے میرے ماں بچوں کی ضرورت پورے ہو رہی ہے. نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کے ذمہ جو حق ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے؟ ہاں ان سے آپ کو ایمان کا مذاکرہ کرتے رہنا ہے کہ جس طریقے سے اللہ جیسا یہ تعالی. جو آپ بتا رہے ہیں جی یہ کون سے صحابہ کی زندگی سے آپ ایسا ثابت ہے کہ آپ خود اپنے طرف سے بول رہے ہیں یا کوئی صحابہ کی زندگی سے ایسا ثابت ہے؟ بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے. دکھاؤ میرے کو، بتاؤ کون سے صحابہ کی زندگی میں. دیکھیے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ ایمان کے علاوہ ہاں ایمان کے علاوہ ہاں عمل میں صحابہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. ہاں ایمان میں صحابہ نمونہ ہیں، ہاں. عمل میں نبی نمونہ ہے. ٹھیک ہے. ایمان میں نبی نمونہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کا ایمان وہ بہت اعلیٰ سطح پر ہوتا ہے. ہاں جیسے اللہ کے نبی نے اللہ کی زیارت کی بے شک. تو وہ ایمان کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے جیسے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا. صحابہ نے کاروبار نہیں کیا. نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا ہے ایمان کو فکر کیا ہے نا. صحابہ سب سے پہلے ایمان اسی کے ہیں، بعد میں کاروبار کیے ہیں. ان کا یقین نہیں تھا ان کو کہ ان کا کوئی ایمان بنا کر کام کیے ہیں وہ. دیکھیے مگر ہمیں ایمان کو نہیں سیکھے نا. یہ ہماری بات سمجھو. مکی زندگی کے اندر جو 13 سال گزرے ہاں ان 13 سالوں میں جو تعداد تھی جو آتے تھے ہاں ان کو اللہ رب العزت کو نمونہ بنانا تھا. ہاں یہ تعداد جو تھوڑی سی تعداد تھی ہجرت تک 125 کی تعداد رہی صحابہ کی 13 سالوں میں. یہ تعداد یہ مکی زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ یہ سبب میں گئے ہی نہیں. انہوں نے جس دن کلمے کی گواہی دے کر اسلام میں داخل ہوئے یہ تعداد یہ پھر ایمان کے سیکھنے پر ہی گئی، یہ سبب میں نہیں گئے. اب مدنی زندگی کے اندر آئیے، یہ مکی زندگی کی ترتیب ہے. یہاں کوئی صحابی سبب میں گئے نہیں.
हाँ और जो कुछ इनके पास माल था, हाँ जो कुछ था हम्म, वो माल भी अल्लाह ने इनसे खर्च करा लिया। हम्म, अब आइए मदनी जिंदगी के अंदर। हम्म, मदनी जिंदगी के अंदर हम्म, सहाबा की एक तादाद वो थी जो नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए, हम्म, और एक तादाद वो थी जो सबब में जाते थे। हम्म, दोनों तादादें मिलेंगी आपको, पढ़ लीजिएगा। हम्म, अब ये जो सबब में जाते थे, हम्म। इनमें क्या जो गए हैं सबके ईमान कमजोर हो गए? आप क्या कहेंगे? नहीं वो मैं क्या बोला चाह रहा था, नहीं नहीं सहाबा ने ईमान को सीखा था। नहीं, ताला ईमान सुम्मा तामुल कुरान, उन्होंने सबसे पहले ईमान को सीखा, बाद में कुरान को सीखा। ईमान सीखा था उन्होंने। हमारा हाँ मसला ये है, हम लोगों ने ईमान को नहीं सीखा। देखिए, हम्म, ये ताल्लुमुल ईमान जो आपने हदीस पढ़ी है, हाँ ये अब्दुल्ला इब्न उमर हाँ गालिबन उन, हाँ उन हाँ मैं सुना, अब बहनों भी मैं इसको सुना हूँ सब। हाँ, तो जाके काबे के अंदर जाके ऐलान करते थे, हमने सबसे पहले क्या ईमान को सीखा, बाद में कुरान को सीखा। बात को कुरान को सीखा। हाँ वहाँ ईमान के सीखने का माहौल था। हाँ हमारे यहाँ क्या है, ईमान को सीखना कोई काम ही नहीं समझा गया। मैं समझा गया, सही बात है। ईमान को वही मसला सीखना है, कोई काम नहीं समझा गया। वही तो बड़ा मसला हो गया उसका। अच्छा, अब जब एक माहौल ऐसा बन चुका है, हम्म, आप सब कुछ छोड़ देंगे। हम्म, हम तो किसी को मशवरा नहीं देते हैं कि सब कुछ छोड़ दीजिए, हम्म, हम्म, वो उसकी कैफियत है, वो छोड़ दे, उसका मामला है। हम्म, आप इस जमाने में अगर आप सब कुछ छोड़ देंगे, हम्म, आपको घर के लोग, आपके खानदान के लोग, आपके अज्जा व अकारीब जो भी हैं, यहाँ तक कि आपके बीवी बच्चे, वो सब भी मुखालिफ आपको है। ईमान नहीं सीखने देंगे। नहीं ठीक है, हाँ सीखने देंगे? नहीं दे सकते देंगे। वो आपको ईमान सीखने ही नहीं देंगे। हाँ बेशक बेशक, हाँ वो आपको यहाँ लाके फंसाएंगे कि ये हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी करता, ये बाप है हमें कपड़ा नहीं देता, हम्म, ये बाप है ये खाने का इंतजाम नहीं करता। हम्म, आप तैयार करिए अपने बीवी बच्चों को उन सहाबी की तरह हम्म, जिनके घर में फाका हो गया, हम्म, वो अपने फाका छुपाने चले गए जंगल, हम्म, और उनकी बीवी फाका छुपाने के लिए तंदूर में आग जला दिया, हम्म, ताकि घर से धुआं होगा तो मोहल्ले के लोग समझेंगे इनके यहाँ खाना बन रहा है। हम्म, लकड़ी जला दी। हम्म, अगर आपके घर का माहौल ये है हम्म, तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए। हम्म, आप भी नमाज से परवरिश लीजिए, बीवी को भी लगाइए, माँ बाप को भी लगाइए। अगर आपके घर का माहौल ये नहीं है हम्म, तो आप नहीं छोड़ सकते हो, आपको हुकूक अदा करने पड़ेंगे। अब वो अलग चीज़ है, आप उस दर्जे की नमाज बना लो, हम्म। आप नमाज से लेकर उनके हुकूक अदा करो, चाहे सबब से लेकर उनके हुकूक अदा करो। वही ना साहब, हमारा वो हाल था, वो हाल नहीं, इसलिए तो बड़ा मसला हो गया है। वो हाल वो नमाज आपके में जिम्मे, वो उनके तो दूसरी हुकूक बात है। अदा करने पड़ेंगे। हाँ अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, शायद बयान में सुनी होगी, हाँ नहीं सुनी है तो फिर से मैं दोहरा देता हाँ हूँ। जो हमने कहा उसके आगे हमने ये भी कहा कि जो आप सबब से लाओगे हाँ उससे अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करोगे। हाँ अब इंसान के जहन में ये आता है कि जब हम लाएंगे तो हम ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे, कैसे ये हो पाएगा? हाँ तो उसके लिए देखिए, अभी रमज़ान का महीना गुजरा, एक महीना पहले, हाँ सवा महीना पहले, हाँ रमज़ान में आप और हम, अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े रखवाए। हाँ 15 घंटे अफ्तार का वक्त होता है तकरीबन, हाँ हाँ कहीं कुछ कम कहीं कुछ ज़्यादा। हाँ 15 घंटे तमाम चीज़ें मुहैया थीं, हमने रोज़ा रखा नहीं रखा। रखा। भाई मिसाल के तौर पर आपने सहरी खाई, हाँ गर्मी का मौसम है हमारे यहाँ, अब आपके यहाँ कैसा मौसम है हमें नहीं पता। हमारे पास गर्मी का मौसम था। जी, हाँ अब 10 बजे प्यास लगी आपको, हाँ पानी मौजूद होता था नहीं होता था? बहुत अच्छा।
क्यों आप पी लेते थे? हाँ अरे पीते थे? नहीं पीते, क्योंकि अल्लाह हुक्म है, रोजे में है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे भूख लगी आपको, हाँ जेब में पैसा था, हाँ, बाजार से कुछ लेके खाया? नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? क्योंकि अल्लाह हुक्म है, रोजा है कि रोजे में है। भाई इसीलिए तो हमने नहीं खाया कि वहां हमको अल्लाह का ध्यान था। हाँ भाई अगर ध्यान ना होता, हाँ भाई रोजे में कुछ खाते पीते इसीलिए तो नहीं कि अल्लाह का ध्यान रहता है। हाँ, अच्छा अगर ध्यान हट खाना गया, मना है ना, रोजे में खाना मना है ना, इसलिए तो अरे तो ध्यान ये अलग चीज है। नहीं, ध्यान अलग चीज नहीं है, हाँ जिसने मना किया उसका ध्यान है, हाँ तभी तो रुक गए हो आप। हाँ, वो अल्लाह ने मना किया है ना, सुबह शाम तक रोजा मना अल्लाह ने किया, हाँ, किसने मना किया? रोजा तो क्या है, खाना सुबह से शाम तक तो खाली पेट रहना ना, उसको खाने का हुक्म नहीं है, उसको खाना छोड़ना है ना। अरे बात तो सुनो, हाँ हम ये नहीं कह रहे कि आप खा लो, हम ये कह रहे हैं वो अल्लाह ही का ध्यान तो था जो हमें रोके रखता था 15 घंटे तक। हाँ, कोई बात और थी? नहीं नहीं नहीं, भाई अल्लाह ही का ध्यान तो आ जाता था जब प्यास आती थी और पानी मौजूद होता था, तो हमको अगर पानी नहीं पीते थे तो अल्लाह ही का ध्यान तो आ जाता था कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह से हमने वादा किया है कि मैं रोजा से हूँ, मैं गुरूब तक रोजा अफ्तार नहीं करूंगा। यही चीज तो हमको रोकती थी भूख प्यास में, अल्लाह का ध्यान ही तो रोकता था, कोई चीज और थी? अच्छा ध्यान हट गया, ध्यान हट गया, अब आप पी लो, तो अल्लाह ने कहा चलो जिस वक्त तुमने पिया उस वक्त ध्यान हटा था, रोजा नहीं टूटता है। अगर भूल के आप पी लो तो टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? पानी तो पी लिया, भूल के पिया ना, तो उस वक्त हमें अल्लाह का ध्यान नहीं था, नहीं खाते हैं। इसीलिए तो रोजा नहीं टूटा। खाना खा लिया तो रोजा नहीं टूटा। हाँ लेकिन अगर हमें ये ध्यान है कि हम रोजे से हैं, यानी अल्लाह का ध्यान है, हाँ और एक घूंट भी पानी अंदर चला गया, हाँ, तो रोजा टूट जाता है। रोजा ही नहीं टूटता है, 60 रोजे रखने पड़ेंगे। सही है। इसी तरतीब पर हमको 11 महीने की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी कि हमारी जेब में कुछ भी हो, हम लाएं कुछ भी, उससे अपनी जरूरत अहद करने की पूरी नहीं करनी। उससे जिनके हुकूक हैं, खाली बीवी बच्चों के हुकूक नहीं है, माँ बाप के हैं। अगर आपने माल कमाया है तो हुकूक आपके ऊपर जितने भी हैं वो सारे हुकूक अदा करने पड़ेंगे। मेहमानों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, बीवी के, बच्चों के और मिस्कीनों के, पड़ोसियों के, जितने हुकूक हैं, यतीमों के, वो सारे हुकूक आपको उसमें से अदा करने पड़ेंगे। अच्छा दूसरी चीज ये है, अगर आप इस पर तैयार हैं कि नहीं हम तो सबब से नहीं लेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बुरा अमल है, ये अफजल अमल है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, आपको नहीं रहने दिया जाएगा। सही है, ठीक है। वही बात। आप इस सतह पर आकर, जो लोग इस सतह पर आते थे वो जंगल चले जाते थे, वो इंसानों से दूर हट के कहीं चले जाते थे, क्योंकि जानते हैं कि इंसानों के बीच में रहकर हम इस सतह पर अपनी जिंदगी को लाएंगे तो ये हमको छेड़ते रहेंगे, ये हमको ईमान नहीं सीखने देंगे, ये हमको उलझाए रहेंगे। इसलिए देखो पहले औलिया अल्लाह वो जंगलात में चले जाते थे, वो इंसानों से इसीलिए हट के चले जाते थे कि हम तो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए सबको लात मार के बैठेंगे, और ये जो जमात है फतवा देने वालों की, ये तो कह देगी कि ये राहिब है, ये तो रहबानियत कर रहा है, ये गुमराह हो गया है।
तो हमको छेड़ते रहेंगे, अल्लाह से हमारा ताल्लुक जुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए वो सबके बीच से गायब होकर जंगलों में चले जाते थे। लेकिन हम और आप जंगल नहीं जा सकते, हमारे यहाँ वो जंगल ही नहीं बचे। अब तो अगर आप जंगल चले जाओगे तो पता नहीं किस केस में अंदर कर दिए जाओ कि क्या प्लानिंग यहाँ बना रहे हो बैठ के। तो जंगल तो आप नहीं जा सकते हो। बीवी बच्चे हैं, आप या तो उनको आज़ाद कर दो, आपके हुकूक से वो आज़ाद हो जाए, और या तो आपके ज़िम्मे है आपको उनके हुकूक अदा करने हैं। और जिस वक्त आप उनके हुकूक अदा करें, अपने बीवी बच्चों से मुज़ाकरा करते रहो कि देखो मैं तुम्हारा बाप तो हूँ, बीवी से कहो मैं तुम्हारा शौहर तो हूँ, मैं तुम्हारा राज़िक नहीं हूँ, वो अल्लाह है। इसलिए अब जिस तरतीब पर आप जिंदगी गुजार सकते हैं वो आपको इख्तियार है, गुजारिए, हम क्या मना कर रहे हैं। सहाबा में जो आपने पूछा था कि सहाबा में बताइए, तो सहाबा में दोनों तरतीबें मिलेंगी। मक्की जिंदगी के सहाबा कहीं नहीं गए, आप नहीं दिखा सकते, कोई नहीं दिखा सकता है मक्की जिंदगी के अंदर सहाबा गए हो। मदीनी जिंदगी के अंदर आपको मिलेगी तादाद जो सबब में गई है, लेकिन ये तादाद आपको सहाबा में किसी की नहीं मिलेगी तो उन्होंने अपनी हाजत के लिए कोई सबब अख्तियार किया हो। वो अपनी हाजत पूरी करने के लिए उन्होंने नमाज का अमल ही लिया। ये दोनों मिल जाएंगे, आप हमसे बहस ना करें, आप खुद ही देख लीजिए, दोनों तरतीबें आपको मिल जाएंगी। और मैं तो मशवरे के तौर पर ये कह देता हूँ कि आप लोगों के हुकूक अदा करिए लाकर, ताकि लोग आपको इत्मीनान से अल्लाह के और आपके दरमियान जो मामला है उसमें वो दखल न दें, उन्हें तो वो आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। और चाहे आप गोसा नसीन होकर देख लीजिए, अगर आपको कोई सुकून लेने से बताइएगा। तो ये आप तो कौन कहता है कि आप 8 घंटे 10 घंटे वहाँ जान लो जाकर। आप अल्लाह से मांगो